Before we start the session, I request you all to please switch off your mics and cameras. Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha Ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for the sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Tribunaji, President of GBRAV, respected Vaidya Shri Rajesh Koteja Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAV. Today's guest speaker is Dr. Avinash Baid Sir, CREV Guru, Kaya Chikitsa from Raipur, Chhattisgarh, who has joined us today in the 261st episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantari. Dhanvantarimadhidevam Surar Surarvandit Pad Padmam Lokir Jararuk Vaimrityunasham Sham Vividhoshadinam. Om Dhanvantaraya Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Avinash Baid Sir, who is going to throw light on the topic Adverse Drug Reactions and Drug Safety in Ayurveda, a comprehensive review. Dr. Avinash Baid is a distinguished Ayurvedic physician with over 25 years of professional experience in clinical practice, hospital, administration, and integrative healthcare. He earned his BMS from Government Ayurvedic College, Jabalpur, and his MD from Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka. He currently serves as Chief Medical Officer at Dr. Abhimanyu's Ayurved Multi-Speciality Hospital, Raipur, and is the founder and consultant of Manav Seva Hospital. A double gold medalist, Dr. Baid has published several research articles, delivered invited academic lectures, and actively contributes to the advancement of evidence-based Ayurveda through research, education, and clinical excellence. Now, I would like to invite Sir to proceed with this lecture. Thank you, Sir. Thank you, Dr. Garima. सभी वरिष्ठ वैद्यगणों को, गुरुजनों को मेरा प्रणाम और खासकर टीम आरएवी को जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं इस सेशन को आपके सामने रखूं। मेरा am I audible? Yes, sir. Okay. My topic is Adverse Drug Reactions and Drug Safety in Ayurveda, a comprehensive review. I am Dr. Avinash Baid. As Dr. Garima introduced to me, I am Chief Medical Officer, Dr. Abhimanyu's Ayurveda Multi-Hospitality in Raipur, Chhattisgarh. Now, the question is, why does this topic arises? Adverse Drug Reaction in Ayurveda. पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि आयुर्वेदिक औषधियों और आयुर्वेदिक न्यूट्रल सप्लीमेंट्स की बाजार में एक बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं शास्त्रोक्त औषधि ना देकर अपने मन से कुछ फॉर्मुलेशंस बनाकर मार्केट में दे रहे हैं, जिससे यह बार बार यह बात आती है कि क्या आयुर्वेदिक औषधियां सुरक्षित हैं, क्या इन्हें साइंटिफिक कसौटी पर परखा गया है। सो दिस इज द मेन रीजन दैट ओवर द इयर्स द यूज ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स and Ayurvedic medicines have increased. So now we are getting some information that some
manufacturers are not making these drugs according to Shastra, and we are getting different types of reactions. So first we will see the adverse drug reaction. What does the modern science is and what is its definition? Any undesirable or unintended consequences of drug administration is called ADR or adverse drug reaction. मतलब आपने कोई भी मेडिसिन, कोई भी औषध किसी भी पेशेंट को दी है और आप जैसा चाहते हैं या उस औषधि का जो गुण है उसके अनुसार रिजल्ट ना आकर कोई अनहोनी होती है, उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रूप में मानते हैं. The more broader definition is any noxious change which is suspected to be due to drug occurs at doses normally used in man, requires treatment or decreases in dose or indicates caution in the future use of the same drug. यानी कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट जो किसी औषध से होता है और उस औषध को बंद करना पड़े, साथ ही बंद करने के साथ साथ उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हमें कोई दूसरी औषध देना पड़े, इसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं. एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडीआर इन आयुर्वेदा. आयुर्वेद में हम डायरेक्टली एडीआर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वी डोंट हैव एनी एडीआर वर्ड यूज्ड इन आयुर्वेदा, बट देयर आर रेफरेंसेस. बहुत से ऐसे शब्द हैं हमारे शास्त्रों में जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन वैद्यों को भी यह मालूम था कि औषध की शुद्धता, औषध निर्माण, औषध मात्रा इत्यादि को लेकर कुछ ना कुछ कमियां रह सकती हैं, जिसके कारण औषध का अपेक्षित परिणाम नहीं आएगा. इन सब चीजों को हम आज के आधुनिक युग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन में ले सकते हैं. एक शब्द यूज किया गया है आयुर्वेद में अयोग्य, अयोग. दूसरा अति योग, मिथ्या योग, विरुद्ध आहार, विरुद्ध औषध, असात्म, अपक्व औषध, अशुद्ध द्रव्य, इम्प्रॉपर शोधन या रॉन्ग अनुपान या गलत अनुपान. इस तरह के अनेकों शब्द आए हैं आयुर्वेद के शास्त्रों में, जो जिन्हें हम आज के एडीआर अर्थात एडवर्स ड्रग रिएक्शन में रख सकते हैं. क्या Am I audible to you, sir? Yeah. Yes, sir. Yes. You may continue, sir. Yeah, just 1 minute. I lost my connection, I think. Yes, sir. Okay, sir. अभी जितने भी हमने शब्द देखे, हम इनको कुछ वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे ड्रग इंटरेक्शन या विरुद्ध द्रव्य उपयोग, एट्राजेनुक या वैद्याकृति, ओवरडोज, अति मात्रा द्रव्य प्रयोग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अनहोलसम ड्रग्स या अहितम द्रव्य, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन डाइवर्स पैथोलॉजिकल स्टेट, या इसे हम कह सकते हैं अवस्था अनुसार द्रव्य प्रयोग, थेरेपेटिक प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशंस, जैसे हम अलग अलग प्रोसीजर्स करते हैं जैसे पंचकर्म, उनमें उत्पन्न होने वाले व्यापद, ये सारे हम, या फिर इम्प्रॉपर यूज ऑफ रस औषधि, मेडिसिन ऑफ मिनरल ओरिजिन, इनके हम जो है इन्हें हम एडीआर के संबंध में पढ़ सकते हैं.
ड्रग इंटरेक्शंस इन आयुर्वेदा। जो सबसे कॉमन जो एडीआर है या जो व्यापक है वो ड्रग इंटरेक्शन से होता है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के ड्रग इंटरेक्शंस बताए गए हैं शास्त्रों में, जिनमें हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इज हर्ब एंड हर्ब इंटरेक्शन। जैसे पाइपर बीटल या पान को गार्सिनिया मोरिला के साथ नहीं लेना है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। बेसिका एल्बा को सीसम इंडिकम या तिल के साथ नहीं लेना है, ऐसा शास्त्रों में बताया। इस तरह के अनेक ड्रग इंटरेक्शंस जो एडीआर में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमारे शास्त्रों में पहले से इनके बारे में चेतावनी दे दी गई है। दूसरा होता है हर्ब फूड इंटरेक्शन। जैसे हम मूली के साथ दूध नहीं ले सकते, वाइन के साथ स्टीम ग्रेन नहीं ले सकते, इस तरह के भी विचार हमारे शास्त्रों में रखे गए हैं। तीसरा है हर्ब एनिमल ओरिजिन ड्रग इंटरेक्शन। इस संबंध में भी शास्त्रों में बेहद विस्तार से बताया गया है। जैसे कपोत मांस को हम सरसों तेल के साथ नहीं लेना है, ओर्क को नारिकेल तेल के साथ नहीं लेना है, मधु और घृत बराबर मात्रा में नहीं लेना है। यह हर्ब एनिमल ओरिजिन ड्रग इंटरेक्शन के कुछ उदाहरण हैं। देन ड्रग एक्सरसाइज फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन भी आयुर्वेद में कहा गया है कि श्रम और औषध का भी एक नियम है। जैसे मैथुन, श्रम, आतप, क्रोध जो है गुगलू के सेवन के समय नहीं करना चाहिए, अन्यथा गुगलू के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ड्रग डिसीज इंटरेक्शन। कुछ डिसीज में कुछ द्रव्य नहीं देना है। जैसे हरितकी जो है प्रेगनेंसी, माल न्यूट्रिशन और रक्तस्राव या रक्त मोक्षण के बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक उसी तरह रसायन के बारे में यह कहा गया है कि आलसी, दरिद्र, प्रमादी, व्यसनी, पापी, भेषज अपमानी व्यक्ति का रसायन नहीं करना है। जिस तरह ड्रग ड्रग इंटरेक्शन से एडीआर हो सकता है, उसी तरह एडीआर का एक और बेहद कॉमन जो कारण है वो है ओवरडोज या किसी भी द्रव्य का, औषध का अति मात्रा होना। आयुर्वेद के हिसाब से हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: क्वांटिटी ओवरडोज, क्वालिटेटिव ओवरडोज या फंक्शनल ओवरडोज। क्वालिटेटिव ओवरडोज अर्थात द्रव्य अति सेवन, खासकर जब हम एक रस, जो आयुर्वेद में षड रस कहे गए हैं, उनमें से एक रस द्रव्य को जब हम अधिक सेवन करते हैं तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं एक रस के सेवन से, वह हम क्वांटिटेटिव ओवरडोज में रख सकते हैं। क्वालिटेटिव ओवरडोज मतलब एक ही गुण के, जैसे हमने गुरु गुण वाले ही पदार्थों का सेवन किया तो उससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो क्वांटिटेटिव ओवरडोज में आएंगे। तीसरा फंक्शनल ओवरडोज या कर्मता अतिसेवन। इसका एक प्रमुख उदाहरण है तीव्रत लेह को इच्छा भेदी रस के साथ लेना। दोनों ही विरेचक द्रव्य है, दोनों का ही कर्म जो है विरेचन का है। अगर हम दोनों द्रव्यों को एक साथ लेंगे तो यह अति सेवन कहलाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तीव्रित और इच्छा भेदी रस को एक साथ लेने के बारे में जो ड्रग ओवरडोज से एडीआर होता है, इसके बारे में केएलई कॉलेज ने, कर्नाटक के केएलई कॉलेज ने एडीआर रिपोर्ट की है सन 1910 में। यह डॉक्यूमेंटेड है कि इस तरह के एडीआर होते हैं और ये स्पेशली केएलई कॉलेज कर्नाटका ने इसे रिपोर्ट किया है सन 1910 में। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अपने द्रव्यों के रूप में, रसों के रूप में या उनके कार्मुकत्व के हिसाब से
अवस्थानुसार द्रव्य। अगर हम बीमारी की सही अवस्था के हिसाब से द्रव्य का उपयोग नहीं करें तो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोषानुसार, बल अनुसार, प्रकृति अनुसार, काल अनुसार और अग्नि अनुसार इस तरह की हमें जानकारी होनी चाहिए जिससे हम औषध को सही रूप में आतुर को दे सकें। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स ऑन डिजीज, रोग के अवस्था अनुसार जो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या दूसरे ही नंबर पर सीजन और समय, काल और ऋतु के हिसाब से जो द्रव्य निर्दिष्ट हैं, और तीसरा जो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, जो उनके प्रकृति के अनुसार जिन औषधों का उस व्यक्ति में वर्जन है। इसका उदाहरण है, जैसे हम रोग की अवस्था अनुसार, जैसे कषाय रस द्रव्यों को हम नाव ज्वर या तनुज ज्वर में नहीं देना है, या सेप्सिस का उपयोग नहीं करना है। काल विरुद्ध द्रव्य का सबसे अच्छा उदाहरण, रात्रि में, गर्मी में, स्प्रिंग में हम दही का सेवन निर्दिष्ट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ड्रग एडीआर का जो कारण है वो है इडियोसिंक्रेनेसी। इडियोसिंक्रेनेसी बिल्कुल अलग तरह का एडीआर है। इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि किसी भी ग्रुप में सब कुछ ठीक होते हुए एक या दो व्यक्ति ऐसा होंगे जिनमें सब कुछ है। आपने उनका काल, वय, अग्नि सब कुछ परीक्षण किया और उचित द्रव्य दिया, औषध दिया, उसके बाद भी उन व्यक्तियों में कुछ ना कुछ औषध का उपद्रव देखने को मिलता है। इसे हम इडियोसिंक्रेनेसी कहते हैं। ये काफी कम लोग होते हैं, टोटल पॉपुलेशन के 5% से कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें आपका अनुमान बिल्कुल सही होते हुए भी द्रव्य में औषध का कोई ना कोई उपद्रव देखने को मिलता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो बीपी की ड्रग एटेनोल है, वो भारत और एशियाटिक कंट्रीज में तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में इसका उपयोग कम होता है क्योंकि कॉकेशियन रेस यानी यूरोपियन रेस में इस ड्रग का जो है इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं आता। तो यह सब कुछ सही होते हुए भी एक पर्टिकुलर ड्रग का किसी पर्टिकुलर रेस में कोई काम ना आना, ये इडियोसिंक्रेनेसी कहलाता है। हमारे आयुर्वेद में भी मैंने एक किसी ड्रग मैन्युफैक्चरर से बात की थी, तो उनका एक प्रोडक्ट जो है, जो काफी अच्छा फार्मेसी है, मैं फार्मेसी का नाम नहीं लूंगा, ना ही ड्रग का नाम लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक ऑइंटमेंट है जो वेजाइनल इन्फेक्शंस के लिए काम आता है। वो भारत में तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन चीनी पॉपुलेशन में वो उस दवा को चीन भी एक्सपोर्ट करते थे, तो चीनी पॉपुलेशन में उस ड्रग का, उस पर्टिकुलर ट्यूब का कोई रोल नहीं है, उन्हें वहां कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने पूरे चाइनीज मार्केट से उस प्रोडक्ट को वापस लिया है। तो ये इडियोसिंक्रेनेसी जो है, ये हार्डली 5% से कम लोगों में होगी टोटल पॉपुलेशन के, बट सब कुछ सही होते हुए भी ये नहीं होता। फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग्स ऑन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति के विरुद्ध द्रव्य उपयोग। हमें हमेशा सिखाया गया है कि प्रकृति अनुसार द्रव्य देना है, औषध देना है। यदि हम व्यक्ति की प्रकृति के अगेंस्ट जाकर, उसके विरुद्ध जाकर द्रव्य देंगे, या उसकी प्रकृति को बिना समझे द्रव्य देंगे, तो एडीआर अर्थात उपद्रव जरूर होंगे। जैसे भल्लातक का प्रयोग या हींग का प्रयोग त्वक विकारों के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो पित्तज प्रकृति का हो, उसमें अगर हम भल्लातक का प्रयोग त्वक विकारों के लिए करेंगे तो उसमें उपद्रव दिखाई देंगे। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं
कि त्वक विकार, प्रकृति के हिसाब से भी हमको द्रव्यों का चयन करना चाहिए। एक और कैटेगरी जिसमें एडीआर या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या उपद्रव देखने को मिल सकते हैं, वो है प्रोसीजरल थेरेपीज। हम आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। पंचकर्म करते हैं, उसके पहले हम पूर्व कर्म में संस्वेदन करते हैं, तथा अनेक और प्रकार के जैसे अग्निकर्म, विद्ध कर्म, इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। इन प्रक्रियाओं में होने वाले उपद्रव भी एडीआर के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रोसीजरल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के रूप में रिपोर्ट किए जाते हैं। जो प्रक्रियागत प्रोसीजरल थेरेपीज हैं, जो प्रक्रियागत एडीआर हैं, उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे ऐसे उपद्रव जो सामान के कारण या इंस्ट्रूमेंट के कारण हो, जैसे वस्त्री नेत्र का सही नहीं होना, और धूपन के समय धूपन यंत्र का सही नहीं होना। दूसरा होता है प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले औषध को लेकर। अगर प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले औषध सही ढंग से नहीं निर्मित हुए हैं, तब उनकी मात्रा, उनकी गुणवत्ता अगर सही नहीं है, तो इनसे उपद्रव हो सकते हैं। फिर इट्राजेनिक, जिस तरह पहले मैंने बताया कि सब कुछ सही होते हुए भी 5% से कुछ कम लोग ऐसे होंगे जिनमें उपद्रव उत्पन्न नहीं होगा, और हमें वो देखना पड़ेगा। एक और कैटेगरी है इसमें पेशेंट्स फॉल्ट या रोगी संबंधी। हमने प्रक्रिया सबसे अच्छी की, बहुत अच्छी की, औषध बहुत अच्छा रहा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कोई कमी नहीं रही, लेकिन जब प्रक्रिया के बाद आतुर अपने घर जाता है, तब हम उसे अनेक प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे पंचकर्म के बाद हम संसर्जन कर्म करते हैं। अगर मरीज इन चीजों का सही ढंग से पालन नहीं करता है, तब भी उपद्रव होंगे, तो ये भी प्रोसीजरल एडीआरस में आएंगे। उसके बाद आता है रस औषधि, मिनरल ड्रग्स एंड देयर रोल इन एडीआर। हमें इस बात को समझना होगा कि आयुर्वेद में एडीआर की पूरी बात जो है वो मिनरल ड्रग्स या हमारे रस औषधियों के कारण ही शुरू हुई है। कुछ सालों पहले अमेरिका में हमारी रस औषधियों पर कुछ हैवी मेटल्स के कारण से प्रतिबंध लगा था, या कुछ एक बैचेस दवाइयों के बैन हुए थे। तब यह कहा गया था कि आयुर्वेदिक औषधियों में जो हैवी मेटल्स होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अधिक है। और आयुर्वेद में ड्रग एडीआर की स्टडी भी इसीलिए शुरू हुई कि क्या हम जो औषधियों में केमिकल्स डाल रहे हैं या हैवी मेटल्स डाल रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। अभी तक के तो स्टडीज में यही आया है कि ये सुरक्षित हैं, बट हर देश के अपने अपने मानक हैं। तो हमारी रस औषधियां हमेशा जो हैं इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इसका सबसे आसान सा एग्जाम्पल ये है कि अपक्व लौह भस्म, जिस तरह से अपक्व लौह भस्म के अनेकों उदाहरण सामने आए हैं, जिनसे पेट में दर्द, स्किन के कॉम्प्लिकेशन, सीने में दर्द, जीआई ब्लीडिंग, इस तरह के बहुत सारे एडीआर रिपोर्ट हुए हैं अपक्व लौह भस्म के साथ। इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी रस औषधियां जो हैं कितनी सेफ हैं और हम इनको कितना अच्छा कर सकते हैं। हम एक समरी कर सकते हैं कि आयुर्वेद में एडीआर का टर्म जो है वो कैसा हो। आयुर्वेद में जो है औषधि का उपद्रव जो है वो
किस कारण होते हैं और हम उनको किस में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम औषध का अयोग होगा, अति योग होगा, मिथ्या योग होगा, विरुद्ध आहार के कारण होगा, विरुद्ध औषध के कारण होगा, असात में होगा तब होगा, अपक्व औषध के कारण होगा, अशुद्ध द्रव्य के कारण होगा, इम्प्रॉपर शोधन के कारण होगा, या गलत अनुपान के कारण होगा। आयुर्वेद में एडीआर के कारण क्या है? अगर हम सही ड्रग सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो उपद्रव होगा। सही ड्रग सिलेक्शन करने के लिए जो हमें रोगी परीक्षण कहा गया है, अष्टविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, ये सारे परीक्षण अच्छे से करने होंगे, व्यक्ति की प्रति अच्छे से करनी होगी, जिससे हम गलत औषध ना चुन सकें और एडीआर से हम बचें। सही मात्रा जो है औषध की बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट डोज चाइल्ड डोज के बीच में बिल्कुल क्लियर कट मार्केशन जरूरी है। जब तक के हम सही मात्रा नहीं देंगे तब तक के हमें ड्रग के एडीआर देखने को जरूर मिलेंगे। ड्रग का काल बहुत इंपॉर्टेंट है। आतुर को, मरीज को हमेशा हम ड्रग का सही काल बताएं, कब लेना है। शास्त्रों में जो हमारे सारे काल बताए गए हैं, प्राग भक्त, अधोभक्त, मुहुर्मुहु इत्यादि जो हमें टाइमिंग बताई गई है, वह हमें मरीज को बिल्कुल क्लियर कट, पेशेंट को बिल्कुल क्लियर कट बताना है कि किस काल में उससे औषधि लेनी है। गलत अनुपान से भी अनेक प्रकार की उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। हमें मरीज को एकदम स्पेसिफिक अनुपान बताना है, और जहां एकदम स्पेसिफिक अनुपान नहीं हो वहां पे मधु या उष्ण जल का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। यह मरीज को अच्छे से बताना है। आयुर्वेद में औषधियों में विष का भी समावेश है, जैसे भल्लातक, वत्सनाभ या फिर हेवी मेटल्स। अगर इनका शोधन सही प्रकार से नहीं हुआ है तो यह जरूर इस तरह की औषध का उपयोग करें। हमें ये मेक श्योर कर लेना है कि इनका प्यूरिफिकेशन या शोधन बेहतरीन तरीके से हुआ है, पूरी तरह से हुआ है। और इसे मिनिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस तरह की औषध जिनमें विष या हेवी मेटल्स का प्रयोग हुआ हो, बेहद रिकॉग्नाइज्ड या बेहद रेपुटेटेड या सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से ही खरीदें। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम में से अब ज्यादातर लोग औषध का निर्माण खुद नहीं करते हैं। हम किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के भरोसे रहते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम जिस भी सोर्स से ये मेडिसिन खरीद रहे हैं उसके पास हर प्रकार का सर्टिफिकेशन हो, उसकी औषध निर्माणशाला में बेहद उच्च दर्जे का, बहुत हाई क्वालिटी का काम होता हो, और प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छी तरह होता हो। पुअर मैन्युफैक्चरिंग या औषधि का निर्माण बेहद गुणवत्ताहीन हो तो हमें ऐसे चीजों को अवॉइड करना है। हर ड्रग इंटरेक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हमें वो आहार नहीं लेना है या वो औषधियां नहीं लेनी है जो एक दूसरे से विरुद्ध हो। अंततः सेल्फ मेडिकेशन आज के समय में बेहद घातक एडीआर का कारण बन रहा है। लोग चिकित्सक के परामर्श के बिना अनेकों प्रकार की औषधियां ले रहे हैं। ओवर द काउंटर बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए या नाना प्रकार से उनकी पब्लिसिटी करके ओवर द काउंटर बेची जा रही है। ऐसी सेल्फ मेडिकेशन से हमें बचना चाहिए। रिसेंटली शायद आप लोगों को पता हो कि एनसीआईएसएम और बाकी लोगों ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि इन सब में से कुछ
औषधियों में शतावरी के नाम पर शतावरी के पत्ते थे, जबकि हम आयुर्वेद में इसका प्रयोजन उसका कंद कहा गया है, रूट ट्यूबर। लेकिन कुछ औषधि निर्माता कंद की जगह जो है उसके पत्ते इस्तेमाल कर रहे थे, और इनमें जो है विषाक्तता थी। 15-20 दिन खाने के बाद उपद्रव दिख रहे थे, तो सरकार को स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि इसका प्रयोज्यांग जो है ट्यूबर है, रूट ट्यूबर है। तो हमें यह देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चरर लिख रहा है कि हमारी औषधि में ये है, हमारी औषधि में ये चीज है, तो क्या उसमें वही औषध है, जो वही प्रयोज्यांग है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में जो प्रयोज्यांग लिखा गया है उसमें प्रयुक्त होना चाहिए। ओवरऑल तो हमें सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करना है, लोगों को यह समझाना है कि आयुर्वेद औषधियों के भी अपने कुछ उपद्रव हो सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर किस तरह से बना रहा है इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हमारे शास्त्रों में एडीआर से बचने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। हमारा शास्त्र शुरू से ये मान के चल रहा था, शुरू से ये मानता आ रहा है कि औषध के कुछ ना कुछ उपद्रव होंगे। इसको मिनिमाइज करने के लिए भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट, जिस प्रकार एडीआर डायरेक्ट न दे करके अलग अलग जगहों पे वर्णन है, उसी प्रकार अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिनसे आप जो है एडीआर से बच सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे रोगी परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से हो, रोग की परीक्षा बिल्कुल ढंग से हो, सही मात्रा में आप दें, सही काल में दें, सही अनुपान से दें, आचुर को आप सही पाठ्यापथ्य बताएं, औषधियों का शोधन बिल्कुल सही हो, और अंत में अगर काम आए तो उसे रसायन देना है। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ एडीआर के जो आयुर्वेदिक दवाइयों से मिलते हैं। जैसे भल्लातक से स्किन ब्लिस्टरिंग होती है, या ये रिपोर्टेड है एक्चुअली, भल्लातक के यूज से स्किन ब्लिस्टरिंग या स्किन में फफोलो आते हैं। वत्सनाभ जो है अगर सही ढंग से शोधित ना हो, सही मात्रा में ना दिया जाए तो कार्डिया टॉक्सिसिटी का कॉज कर सकता है। कुपीलू अगर सही मात्रा में नहीं दिया जाए, सही शोधन करके नहीं दिया जाए, तो उनसे कन्वर्जेंस या आक्षेप आ सकते हैं। गुग्गुलू सही मात्रा में और सही शोधन के साथ न दिया जाए तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है। सिन्ना कंटेनिंग फॉर्मुलेशंस जो होते हैं अगर सही मात्रा में दिया जाए तो डायरिया कॉज कर सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। और हेवी मेटल प्रिपरेशंस अगर सही ढंग से नहीं किए गए हैं, जैसे हम बहुत ज्यादा हेवी मेटल्स यूज करते हैं जैसे लेड, आर्सेनिक, अगर इन्हें सही ढंग से शोधन करके नहीं दिया गया है तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी या किडनी खराब होने के चांसेस हैं। अंत में हम ये पता करेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है जो एडीआर की रिपोर्टिंग करे, या हम अगर कोई देखते हैं किसी प्रकार की एडीआर देखते हैं तो हम इसे कहाँ रिपोर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक हमारी सरकार ने फार्मिको विजिलेंस प्रोग्राम बनाया है। फार्मिको विजिलेंस इज द साइंस रिलेटिंग टू डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। ये पूरा एक सिस्टम है जो एडीआर को डिटेक्ट करता है, उसके खतरे, संभावित खतरों के बारे में बताता है, और उसको कैसा रोका जाए इस बारे में स्टडी करता है। आयुष मेडिसिन के लिए रीजनल फार्मिकोविजिलेंस ऑफिसेज हैं, जहां आप अगर आपकी किसी भी औषध से आप किसी भी आतु को अगर एडीआर होता है, कोई उपद्रव होता है, तो आप एक प्रोफार्मा है उसका, उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ADR collection reports from healthcare professional, evaluate safety signals, promote safe and rational use of Ayurvedic medicines, develops awareness amongst practitioners and manufacturers. हमें ADR रिपोर्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर्स पर ये प्रेशर डाल सकें कि वो चीज से अच्छी औषध दें। प्रॉफिट मेकिंग के
उसमें हमें वो अपक्व या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन ना दें। हर छोटे से छोटे एडीआर को हमें प्रमोट करना है। आयुर्वेद में हम एडीआर को कैसे कैसे बचें? प्रॉपर डायग्नोसिस से, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट से, स्टैंडर्डाइज मेडिसिन से, क्लासिकल प्यूरिफिकेशन से, करेक्ट डोजेस से, एप्रोप्रिएट अनुपान से, डाइटरी एडवाइस से, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन हमेशा क्वालिफाइड फिजिशियन के सुपरविजन में लेना है। ओटीसी ड्रग्स नहीं लेनी है। ओटीसी ड्रग्स के यूज को डिस्करेज करना है। पेशेंट्स को बताना है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स के कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू। और आप सभी रेस्पेक्टेड गुरु, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सीनियर्स से अपने फ्यूचर वर्क के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now, if anyone having any questions, you may please ask to sir. Sure. I repeat, do we have any questions? If we have none, Garima, we can conclude the session. Yes, sir. Yes, sir. We will, sir. Thank you so much, sir. Now, on behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Avinash Bes, sir, for delivering such an insightful lecture. I would also like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devin Tribunaji, President of GBRAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Kuteja, sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express our heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars for their presence and active participation for making this webinar a successful one. Thank you, sir. Thank you so much.